Hello, students. In today's session, we are starting up with tenses, the very interesting part of grammar. Why I am saying it's interesting? Because यहाँ पे आपको बहुत तरीके से पता लगेगा कि जो आप अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज करते हैं उनका एग्जैक्ट यूज होता कैसे है, क्योंकि बहुत बार हम ये गलती करते आए हैं कि जो हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं गलत यूज कर रहे हैं और हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि अब हमें लगता है कि वही सही है, right? But all your doubts will be resolved through this session today and things will be crystal clear to you. So let's start with the tenses. Tenses कितने टाइप के होते हैं? जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगी जो प्रकार है टेंसेस की, दैट इज योर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल एंड फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल. So if I talk about these tenses, what is the relevance of the tenses? जैसे कि आप अगर verbs कर लें तो आपकी 80% जो इंग्लिश है वो सॉल्व हो जाती है. आपकी जो प्रॉब्लम है कि इंग्लिश नहीं आ रही है वो सॉल्व हो जाती है. ऐसे ही अगर आप टेंसेस कर लें तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपके इंग्लिश को इंटैक्ट करने में, राइट? सो इसीलिए जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं वो जनरली वर्ब्स में करते हैं और वर्ब्स का यूटिलाइजेशन किसमें है? टेंसेस में. सो टेंसेस एंड वर्ब्स गो हैंड इन हैंड. सो अब से हमें ध्यान रखना है कि किस फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूटिलाइज करेंगे किस टेंस के अंदर, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती होती है, बी इट देयर राइटिंग पार्ट, बी इट देयर स्पोकन पार्ट. ऑलराइट, so there are different categories of each kind of tenses, right? So if I talk about the first type, that is your indefinite. Indefinite, आपने सुना होगा simple present, simple past. This is the same thing. Indefinite tense. Second one is continuous tense. Third is present perfect, present past perfect, yeah, future perfect. Another one is perfect continuous. So you can align that with the word, with the prefix present, past, future. तो आप बोल सकते हैं present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. So these are the basic bifurcations of each types of tenses. Okay? So these are the helping verbs. I hope you will agree with me. As we have discussed in the other session about helping verbs, those who don't know about helping verbs, they can go and check that session. उसमें मैंने clearly बताया है कि helping verbs क्या होती हैं और main verbs क्या होती हैं. अब यहाँ पे बात हो रही है helping verbs की, जो आपके present में, past में और future tense में utilize होती हैं. कौन कौन सी है present tense में? Do, does, is, am, are, has, have, has been, have been. आप नोटिस करेंगे जनरली हम कहते हैं हैज, हैव, हैड, बट हैड किस में आता है? पास्ट टेंस में. दैट इज व्हाई यू कैन सी क्लियरली हियर दैट आई एम स्टेटिंग डू, डज. आई एम स्टेटिंग व्हाट? डू, डज, हैज, हैव and not had. Clear? Another one, has been, have been. We'll check out where we will utilize has been and have been. Past tense helping verbs. Past tense में कौन कौन सी helping verbs use होती हैं? Did, was, were, had been. I hope you will be able to relate. Has been, have been becomes had been in your past tense. Here is, am, are becomes was, were, एंड यहाँ डू डज होता है. यहाँ पे क्या यूज होता है? ओनली डिड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. अब हम ये भी देखेंगे कि सिंगुलर, प्लूरल, डू कहाँ यूज होता है और डज कहाँ यूज होता है. डोंट वरी अबाउट दैट. फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है? विल, विल बी, विल हैव बीन. ऑलराइट, सो यू कैन रिलेट विद द अबव helping verbs. Let's start with the first type of tense, which is your present tense. And as it was specified that we are starting up with first tense, which is simple present tense. Okay?
सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? Verbs have forms called tenses that tell you when the action happens. Okay, when verb क्या है? एक action. Tenses क्या है? वो action कब हो रहा है? अभी हो रहा है, हो चुका है, कल होगा. ये क्या है? Tenses. All right. So in a nutshell, you should know कि verb का मतलब कोई action होना और tenses का मतलब वो action कब हो रहा है. All right. So simple present tense की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. We always wash our hands before our meals. इसका मतलब क्या है? Something which is happening regularly, something which happens regularly and is a part of our habit, that can also be counted in present tense. ये होता है ना? So Dad jogs in the park every day. Dad क्या करते हैं? Jogging in the park every day. तो ये एक हैबिट है, डेली हो रही है. ऐसे भी often go to the movies on Saturdays, right? तो ये भी क्या है कि एक प्रोसेस है जो कि होती है. Mr. Ross takes a train to work. वो काम पे ट्रेन से जाते हैं. करेक्ट? तो ये क्या जस्टिफाई कर रहा है कि the action happens, if the action happens regularly, sometimes or never, या कभी भी नहीं होता. She never takes tea. She never takes tea. That is also an example of simple present tense. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कह रहा है ना कि something which is happening regularly as a habit, है ना? अगर कुछ हो रहा है या कोई फैक्ट है तो वो क्या है? प्रेजेंट टेंस. बट लाइकवाइज अगर कोई चीज नहीं है तब भी वो क्या है? आपका प्रेजेंट टेंस. लाइक नेवर. सो इफ द एक्शन हैपेंस रेगुलरली, समटाइम्स और नेवर, you should use simple present tense. We are going to check the examples ahead where we will see the Hindi part also, so that you are able to understand the sentences very, very, very properly. All right? So again, as I told, that simple present tense is also used to state facts. फैक्ट्स बताने के लिए भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. क्या ये फैक्ट है? सन राइजेस एवरी मॉर्निंग. तो यहाँ पे द सन आएगा, दी सन आएगा. यहाँ पे आएगा द सन. क्यों? पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि द बोलना है या दी बोलना है. आई हैव ऑल्सो टॉट इन अदर सेशन ऑल्सो कि द कब आता है और दी कब आता है. जब कॉन्सोनेंट, आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट देखते हैं तो आप इसको द प्रोनाउंस करते हैं. अगर यहाँ पे होता एप्पल या कुछ और तो वो क्या होता? जिसमें वोवल है तो आप बोलते दी एप्पल. और अगर बिग एप्पल है तो आप बोलेंगे द बिग एप्पल, क्योंकि वहां पे बी आ गया है विच इज अ कॉन्सोनेंट. सो अब से द और दी का जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए. और मैं ये तब तक बताती रहूंगी जब तक आपके दिमाग में ये बैठ नहीं जाएगा. ओके, बिकॉज इट इज अ वेरी 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 कॉमन मिस्टेक अगेन. देन penguins live in Antarctica. Penguins live in Antarctica. क्या ये फैक्ट है? ऐसे ही dogs love playing in water. Again a fact. So जो facts है तो वो क्या है? Simple present tense का part है. Use the simple present tense to tell the events of a story that is happening now. अब आप सोचोगे मैम इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आना चाहिए, ये तो हो रहा है. लेट्स चेक आउट द एग्जांपल्स. आई अराइव एट स्कूल. आई सी अनदर गर्ल क्राइंग. आई सी अनदर गर्ल क्राइंग. सो एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि तुम देख रहे हो एंड दैट समथिंग व्हिच इज ऑनगोइंग, आप उसको बता रहे हो, तो उस केस में क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आपका यूज होगा. ओके, जैसे she says she has not got any friends in the school. She says she has not got any friends. Has not got क्या है? Has not gotten. So वो क्या आएगा? वो तो आपका perfect tense है. But she says वो ये कह रही है, which is your present tense. All right.
चलिए ये तो बाकी और एग्जाम्पल्स हैं जो हम कह रहे हैं कि आई एम 12, आई एम इन द गार्डन, आई एम 12, ओके, आई एम इन द गार्डन, मैं 12 साल का हूं, मैं गार्डन में हूं, माई मॉम इज वेरी टायर्ड टुडे, कोई फैक्ट है ना, ऐसे बता रहे हैं कि थकी हुई हैं आज मम्मी, है ना, समथिंग विच यू आर टेलिंग दैट इट इज देयर, लाइक माई teacher is tall, the teacher is tall, she is also pretty, our dog is black, चाहे कोई फैक्ट हो, कोई स्टेट हो, अगर आप उसको दिखा रहे हैं तो आप क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब चेक करते हैं इन डिटेल इन टेंस को, ओके, इस कैटेगरी ऑफ टेंसेस को। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। ता, ते, ती, करता है, करती है, करते हैं। जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस देखते हैं तो आपको समझना है कि यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एस कब लगाते हैं। एस लगता है जब आपका सिंगुलर फॉर्म है और थर्ड पर्सन की बात करी जा रही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी आगे जहां पे हम चेक करेंगे कि एस कैसे हो रहा है, राइट। सो विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद द लेटर ओ, गो, डू, उनके साथ क्या हो जाता है, ES। खाली एस देखा है डज में, नहीं होता ना, DOS नहीं होता ना, क्या होता है, DOES, बिकॉज देयर इज अ रूल कि अगर कोई वर्ब है, मेन वर्ब, जिसमें एंडिंग जो हो रही है वो O से हो रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, GOES। ऐसे ही DOES। ऐसे ही मेन वर्ब जो SS से एंड हो रही हैं या SH से एंड हो रही हैं, लाइक किसेस, मिसेस, पासेस, ये डबल एस है सारा, तो क्या हुआ, ES आया, पुशेस, रशेस, SH है तो क्या आया, ES। आई होप आई एम क्लियर, राइट। नाउ कोई वर्ब जो X से एंड हो रही है, डबल Z से एंड हो रही है, या आप Z कहते हैं, डबल Z, ओके, या CH से एंड हो रही है, उनको क्या बोलेंगे, फिक्सेस, रिलैक्सेस, बजेस। क्या आपने नोटिस किया हमने क्या ऐड किया, ES। सो दीज आर द रूल्स दैट यू शुड नोट इट डाउन कि कहां कहां पे आपको ES लगाना है। आई एम कमिंग अगेन, इसके अंदर जहां पे O से एंड हो रहा है आपका वर्ब, तब आप ES लगाएंगे, जहां डबल S और SH से हो रहा है तब आप ES लगाएंगे। ऐसे ही जहां X से डबल Z और CH से हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे, ES। Let's proceed towards the next slide. So with the main verbs ending with consonant Y, such main verbs end with Y, but Y is preceded by a consonant. Like consonant क्या है, B, C, D, F, G, जो भी vowel नहीं है उसके अलावा क्या है हमारे, consonant। अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या यूज करेंगे, ES। क्या आपने देखा जो वर्ब Y से एंड हो रहा है उसके जस्ट पहले हमने कॉन्सोनेंट देखा, कॉन्सोनेंट क्या है यहाँ पे, R, तो उस केस में क्या हो जाएगा, Y कन्वर्ट हो जाएगा I के अंदर और ES ऐड हो जाएगा। सो इट्स अ रूल। सो नाउ यू शुड नॉट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक इन सच केसेस। सो मैरी क्या हो जाएगा, मैरीज, ट्राई, ट्राइज, fly, flies. Okay, so this is how the pattern will go. When not to put ES, अभी तो था कि ES कहां डालना है, लगाना है। अब ES कहां नहीं लगाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। With the main verbs ending with vowel plus Y. Vowel क्या होता है, A-E-I-O-U, करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो इन दैट केस आपको S लगाना है, ES नहीं लगाना। लाइक से, बाय से पहले क्या हो रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है, वॉवल, इसलिए हमने इसको क्या किया, से। सो इट इज गोइंग विद द रूल दिस, वॉवल प्लस वाई, वॉवल प्लस वाई, ए इज द वॉवल, वाई इज द एंडिंग, ओके। तो सेज, प्लेस, सो यू शुड नो कि सेज कब आता है, प्लेस कब आता है, कि जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इंग्लिश बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है,
कभी ES लिख रहे हैं, कभी S लिख रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो द रूल्स. सो नो द रूल्स एंड यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स. ओके, अब एफर्मेटिव रूल क्या है इसके अंदर? अब इसमें कैटेगरी हम एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, जिसमें रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES. सो इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लस हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, SES डिपेंड करेगा आप कब लगा रहे हैं. क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं हम लोग, फिर उसमें हम S या ES जोड़ रहे हैं डिपेंडिंग की हम क्या यूज करें. थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम SES लगाएंगे. ओके, और फिर उसके साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट. ये पूरा एक रूल है. यू शुड नोट डाउन दिस रूल बिकॉज अहेड यू विल फॉर्म सेंटेंसेस on the basis of this. So repeating, subject plus verb की first form plus उसके साथ S या ES आप लगा रहे हैं डिपेंडिंग की थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं, and then object. Okay, examples. Ram goes for a walk. Ram goes for a walk. तो goes क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि वो जाता है. क्या बताया प्रेजेंट टेंस में? करता है, करती है, करते हैं, तो वो जाता है. सो राम गोज फॉर अ वॉक. मैं खेलता हूं, आई प्ले. आई के साथ प्लेज क्यों नहीं आया? इस केस में क्या होता है कि आपको SES नहीं डालना होता है आई के साथ. ऑलराइट, देन अमन लिव्स विद मी. क्यों मैंने आपको आई का बताया? क्योंकि सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ आप SES लगाते हैं, बट आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आई के साथ SES नहीं लगता है. इट्स एन एक्सेप्शन. ओके, अमन लिव्स विद मी. अमन मेरे साथ रहता है. क्लियर? रहता है. वी लाफ, हम हंसते हैं. दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स. वे मरीजों को रक्तदान करते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं. कर तो करते हैं, करता है. आई होप यू आर क्लियर विद द पैटर्न. रमेश गेट्स अप एट 5 o'clock in the morning. रमेश सुबह 5 बजे उठ जाता है. सो अब आप समझ पा रहे होंगे. आई हैव डिग्ड इन दैट डीप कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस पे जाऊं, ताकि किसी भी बच्चे को जिसका अगर बेस भी वीक है उसको 1% भी दिक्कत नहीं हो. इसलिए आई हैव डन दिस and I should not find any mistakes later on. Likewise, he watches. मैंने क्या मेंशन किया था? जब CH भी लगाते हो तब भी ES आता है, इसलिए यहाँ पे watch नहीं है, खाली S नहीं है. क्या है? watches. He watches the movie all day. वे मजे करते हैं या वो मुझे लाइक करते हैं. They like me. All right. I go to college with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज या स्कूल जाता हूं. He knows how to drive the car. उससे कार चलाना आता है या वो कार चलाना जानता है. क्लियर? ओके. नेगेटिव रूल क्या कहता है? अब ये तो हमने एफर्मेटिव देख लिए. नेगेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस डज या डू. जो आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है डू वाली, ये किसके साथ यूज होती है, कब यूज होती है? या तो आपको नेगेट करना है, आई डू नॉट वांट दिस, है ना, तो आप नेगेट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं डू यू वांट दिस, मतलब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन. या तो अगर आपको क्वेश्चन बनाना है या तो आप उसको नेगेटिव मैनर में बोलना है, आई डू नॉट वांट दिस, तब भी आप क्या यूज करेंगे? डू का, डू की हेल्पिंग वर्ब का. डू एक और जगह भी यूज होता है. एक तो हो गया नेगेशन में, एक हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, एक और जगह यूज होता है एम्फेसिस. आई डू वांट दिस. मैं नॉर्मली भी कह सकती हूं आई वांट दिस, बट मैंने क्या बोला? आई डू वांट दिस. ओके, सो जब मैं एम्फेसिस करना चाह रही हूं कि हाँ मुझे चाहिए, तो यू आर राइटिंग डू ऑल्सो. सो दिस इज द केस इन विच यू कैन यूज द वर्ब डू. तो यहां पे क्या आया? सब्जेक्ट, वर्ब. वर्ब कौन सी है? डज और डू, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना.
तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, इसलिए हमने इसको यूज किया है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। And if subject third person singular, we use does, of course. Okay? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एस या ईएस। ही डज दैट, शी डज दैट, बट वी, बहुत सारे लोग हैं तो क्या बोलेंगे? डू। दे डू, नॉट डज। सो प्लूरल क्या है? वी, दे। बट एक बात बताइए, यू के साथ क्या डू आता है या डज आता है? यू के साथ आता है डू, क्योंकि यू आप सिंगुलर में भी यूज करते हैं एंड यू आप प्लूरल में भी यूज करते हैं। तो यू के साथ कौन सी वर्ब जाती है? डू, नेवर डज। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। एंड अनदर एक्सेप्शन इज आई। आई के साथ, आई भले ही सिंगुलर है, ये क्वेश्चन उठता है कि मैम आपने अभी तो कहा कि ही, शी, इट, इसके साथ डज आ रहा है, तो आई भी तो सिंगुलर है, बट आई इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। आई के साथ भी क्या आता है? डू। ऑलराइट, सो आई होप द रूल इज क्लियर. Now we will understand how this rule is implemented in the sentences. He does not take bath every day. He does not take bath every day. बात क्या है आपका? बात आपका वर्ब है, नाउन है? बात यहां पे आपका है नाउन। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं बात और ऐसे आई एम बाथिंग। अरे बाथिंग कुछ नहीं होता, इट्स बेदिंग। बात होता है BATH। आई एम रिपीटिंग, बाथ एंड BATHE। बहुत से लोगों को, आप लोगों में से नहीं पता होगा, बात होता है नहाना। बाथ इज अ नाउन। आई टुक अ बाथ, ठीक है? आई एम बेदिंग मतलब, आई एम सॉरी, दिस इज नहाना, मतलब ये वर्ब है और ये क्या है? नाउन। तो बाथ बोलेंगे और जहां ई लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? बेथ। दोनों ही नहाने के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं, बट बाथ इज अ नाउन एंड बेथ इज अ वर्ब। तो मैं बोलूंगी यू आर बेदिंग, बेदिंग नॉट बाथिंग। ओके, सबसे बाथिंग नहीं बोलना है। एंड शी टुक अ बाथ, उसने बाथ ली, दैट इज बाथ विच इज अ नाउन। बट यहां पे वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? टुक अ बाथ। करेक्ट? टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, ले चुकी है, इसलिए टुक। लाइकवाइज अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अभी हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिरेल हो गए थे, टेंस हम दूसरा चले गए थे, जस्ट टू एक्सप्लेन बाथ एंड बेदिंग। बट अब मैं आपको वापस एग्जाम्पल पे लेके आ रही हूँ, जिसमें हम कह रहे हैं ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, वो रोज नहीं नहाता है। समथिंग विच इज हैबिट, करेक्ट? ही डज नॉट, मैंने क्या बताया था, या तो डू होगा या तो डज होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो डज यूज किया, और यहाँ पे हम नेगेट कर रहे हैं तो हमने नॉट यूज किया। टेक क्या है? आपकी मेन वर्ब। एंड मेन वर्ब में टुक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके रूल में आपने अभी अभी पढ़ा था, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ऑलराइट, ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। आई होप दिस इज क्लियर। आई डू नॉट प्ले, मैंने क्या बताया था? डू नेगेशन में यूज हो रहा है। आई डू नॉट प्ले, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के साथ प्लस प्ले क्या है? आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कई जगह आप देखेंगे ऑब्जेक्ट है, कई जगह ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहां पे आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं। अगर मैं बोलूं आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और प्ले क्या है? आपका मेन वर्ब। ऑलराइट, दे डू नॉट लिव विद मी, वो मेरे साथ नहीं रहते हैं। क्या मतलब हुआ? दे डू नॉट लिव विद मी, वो मेरे साथ नहीं रहते हैं। सो दे के साथ मैंने क्या यूज किया? डू। सो आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट एवरी एग्जाम्पल, चाहे वो दे के साथ हो चाहे वो आई के साथ हो, ताकि यू नो द कॉन्टेक्स्ट। ओके, हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम, उसके माता पिता, उसके मम्मी पापा उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हिज पेरेंट्स क्या है? ये प्लूरल हो गए, तो पेरेंट्स के साथ क्या आएगा? डू, नॉट डज। अगर यहां पे मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रही होती, मदर या फादर की, तो मैं डज यूज करती, बट यहां पे पेरेंट्स है तो मैंने क्या यूज किया? डू। अंकल डजंट मीट मी, डजंट, डोंट,
So I have discussed in the other session, these are called as contractions. And in a gist, in a nutshell, we'll also discuss later after this session also, along like when we are towards the end of the session, I'll discuss about the contractions also. Okay. So now, uncle doesn't meet me. Clear है? तो चाहे आप does not लिखो चाहे doesn't लिखो, बात एक ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आगे मैं ये जरूर बताऊंगी इट और इट्स में क्या डिफरेंस होता है. ITS इट्स एंड IT apostrophe S, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वो आगे आने वाले सेशंस में मैं वो भी बात करने वाली हूँ. ओके. सो he does not speak English, you do not call me, they do not play. दे के साथ क्या आया? डू. बट यहाँ पे क्या आपने एक चीज और चेक करी, मैंने यू के साथ क्या लिखा? डू. तो ऐसे ही यू के साथ आपको आर लिखना है, यू के साथ कभी इज नहीं आता, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि यू क्या है आपका? है तो सिंगुलर, बट आप उसका यूजेज कैसे करते हैं, आपको हमेशा उसको एज अ प्लूरल एंटिटी सोच के और फिर करना है. सिंगुलर तो सिंगुलर एंटिटी मानेंगे, अगर प्लूरल है बहुत सारे हैं तो यू के साथ आपने क्या लिखा? डू. बट आपके साथ भी वो अकेले बंदे के साथ भी डू ही आएगा, दैट्स एन एक्सेप्शन. ऑलराइट. अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, WH family. What is WH family? Whose pen is this? Who is this? What? Why? So this is what? WH family. All right. So WH family plus does do, subject plus verb की first form plus object. Mark this rule, please. This rule is important. You are knowing that WH family use हो रहा है, does do use हो रहा है, subject use हो रहा है, verb की first form use हो रही है और object, and then followed by a question mark because it's interrogative sentences. Okay, if it's interrogative sentence you need to put the question mark. तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? Where do you live? Where मतलब कहाँ? Where do, क्या do आएगा? Does नहीं आएगा क्योंकि you है, और फिर मैंने live क्या यूज किया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. Do the clouds float in the air? Do the clouds, please hear me carefully, listen to me carefully. Do the clouds float in the air? The and the. Okay, good example for that. So do the clouds float in the air? क्या बादल हवा में तैरते हैं? है तो प्रेजेंट ना, करते हैं, करता है, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में हो गया. क्या ये ऐसा होता है? क्या वो करते हैं? तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया? डू. अब आप ये सोचोगे मैम अभी तो आपने WH फैमिली बताया था स्टार्ट होगा, अब यहाँ डू कैसे हो गया? तो वो जब आप ये कहना चाह रहे हो क्या, जब स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है तब आप डू यूज करेंगे. जब मैं ये पूछूं तुम क्या करते हो, क्या बीच में आ रहा है? What do you do? वहां पे WH family यूज होता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. क्या वह स्टेज पर नाचती है? क्या पहले आ रहा है? तो मैंने क्या यूज किया? Does she dance on the stage? Does she dance on the stage? मैंने does क्यों यूज किया? Why के लिए तो हम क्या के लिए तो हम why यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको ये रूल जानना भी जरूरी है. जब क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो आपको हमेशा डू या डज, ऐसे ही हैज हैव, ये वाले क्वेश्चन पूछने हैं. ओके. और अगर आपका क्या बीच में आ रहा है, तुम क्या करती हो, तो तब आप क्या बोलोगे? व्हाट, व्हाई, ये सब. ओके. सो यू शुड नो दिस रूल. आपको अभी एग्जांपल्स दिखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके. अभी तो क्लियर है क्या क्या यहाँ आ रहा है. तुमने ये भी नोटिस किया होगा तुम कहाँ रहते हो, तो इसलिए वेयर डू यू लिव आया. करेक्ट. क्या बादल हवा में तैरते हैं, क्या स्टार्टिंग हो रही है, तो मैंने यहां से डू से स्टार्ट किया. डू द क्लाउड्स. अब क्लाउड्स है बहुत सारे, इसलिए यहां पे क्या आया? डू आया, डज नहीं आया. ओके. और क्लाउड्स है तो ऑफ कोर्स यहां पे भी मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करूंगी. डू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, बट यहाँ पे एस नहीं आएगा, ईएस नहीं आएगा, क्योंकि क्या है जी, ये हमारा ऑलरेडी क्लाउड्स है जो कि प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्ब के साथ SES
नहीं आता है. ओके, नाउ डज शी डांस ऑन द स्टेज? डज शी डांस ऑन द स्टेज? डज आ गया, शी आ गया. अब शी के साथ डांसेस नहीं आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी डज में यूज कर लिया है. सो इसके साथ आपको सिर्फ यही रूल यूज करना है कि आपको एस नहीं लगाना है. जो एस लग रहा है वो यहां पे लग रहा है. क्लियर है? जैसा कि आपने यहां भी फॉलो किया. क्या आपने क्लाउड्स के साथ फ्लोट देखा था? फ्लोट्स नहीं था ना, फ्लोट ही था ना. क्यों था? क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पे प्लूरल की बात कर रहे हो. तो ना वहां पे डज आएगा ना यहां पे. और ये तो आपका रूल है कि वर्ब के अंदर एस नहीं आएगा जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. क्लियर है? मैं दोबारा आपको रूल ऊपर दिखा भी दे रही हूं. यहां पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. क्या यहां पे एस लिखा है? लिखा है यहां पे? नहीं लिखा ना, तो नहीं लगाना है. इसलिए यहां पे नहीं लगेगा. किसी ने मुझे बीच में नहीं बोला है ना. ये आपको बोलना है कि अगर क्लाउड्स हैं तो यहां पे फ्लोट आएगा. ठीक? तो लाइकवाइज अगर मैं कहती हूं डू यू थिंक अबाउट इट, तो डू यू थिंक अबाउट इट, क्या तुम, क्या से क्वेश्चन शुरू हो रहा है. तो डू यू थिंक अबाउट इट. थिंक क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डू किस लिए आ रहा है? क्योंकि यू के साथ डू लगता है. एंड थिंक अबाउट इट. ओके, क्या तुम इस बारे में सोचते हो, ये इसका मतलब है. डज ही स्टडी एट होम? ही के साथ क्या आ रहा है? डज. और क्या आ रहा है? स्टडी. फर्स्ट फॉर्म. वेयर डू यू लिव? अब कहां कहां आ गया? बीच में आ गया, इसलिए वेयर डू यू लिव. वह आजकल क्या करता है? व्हाट डज. अब यहां पे डू से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? क्योंकि यहां पे क्या से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग नहीं, वह बीच में. वह आजकल क्या करता है? क्या है? बीच में. इसलिए हम क्या यूज करेंगे? व्हाट डज ही डू नाउअडेज. तुम घर पर कब पढ़ते हो? व्हेन डू यू स्टडी एट होम? व्हेन, कब. सो कब को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? व्हेन. राइट? वेरी सिंपल. नेगेटिव इंट्रोगेटिव. एक होता है क्वेश्चन, एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नेगेट कर रहे हैं, नेगेटिव में बोल रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं. WH फैमिली यूज करी, डज डू किया, सब्जेक्ट किया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और फिर ऑब्जेक्ट आया, और फिर आया क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा था? एफर्मेटिव, फिर हमने नेगेटिव पढ़ा, फिर हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव. जनरली क्या होता है कि खाली सिंपल प्रेजेंट बताते हैं, उसका रूल बताते हैं और खत्म कर देते हैं. ये नहीं बताते कि कब क्या पहले था, तो क्या हमने, इसलिए हमने डू यूज किया, और जब क्या बीच में आ रहा है तब हम क्यों क्वेश्चन को आगे कर दे रहे हैं, बाय WH फैमिली में से क्यों यूज कर ले रहे हैं. तो इसको डेप्थ में समझाने का मतलब यह है कि आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब भी क्वेश्चन उठ रहा है तो आप पूरे रूल्स को समझ पाए. ओके, नाउ क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं? क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं? तो क्वेश्चन भी आ गया, नहीं भी आ गया. इसीलिए आप क्या यूज करेंगे? क्योंकि क्या पहले है, आपने क्या यूज किया? डू. द स्टार्स, दी स्टार्स नहीं आएगा. लोग बहुत दी स्टार्स करते हैं. डू द स्टार्स. ओके, डू द स्टार्स नॉट शाइन इन द स्काई. ओके, यहां पे डू भी आ गया, यहां पे आपका नॉट भी आ गया, यहां पे आपका शाइन भी आ गया, जो कि फर्स्ट फॉर्म है. नॉट भी आ गया. अब आप इसको रिलेट करिए. डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट भी आ गया. ऑब्जेक्ट हो नहीं हो डजंट मैटर. क्लियर? जैसे वी प्ले फुटबॉल, तो वी प्ले था तब भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट था ना. अगर वी प्ले फुटबॉल कह देंगे तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट. करेक्ट. पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता? बाय डज पंकज नॉट स्टडी विद यू? ओके, तो पंकज डज आ गया, यहां पे बाय आ गया, WH फैमिली. क्लियर?
डज, पंकज कौन है, सब्जेक्ट है, नॉट क्या आ गया इधर, स्टडी क्या आ गया, वर्ब, यू क्या आ गया, ऑब्जेक्ट. Okay, sorry for the chaos, but it was important to explain. Okay, so now let's proceed towards the next. तुम कौन सा खेल नहीं खेलते हो, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते हो, तो विच गेम आएगा, कौन से को क्या यूज कर रहे हैं, क्या के लिए क्या यूज किया था हमने, क्या के लिए क्या यूज किया था, वाई. ओके, ऐसे ही वॉट, करेक्ट. तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इधर, वॉट के लिए हमने क्या यूज किया था ना, ऐसे ही आप एग्जाम्पल देखिए आगे, तुम कौन सा, विच, ऐसे ही मम्मी उसे क्यों, वाई. सॉरी फॉर दैट मिस्टेक. वॉट मतलब क्या, वाई क्यों, विच कौन सा, करेक्ट. ऐसे ही मैंने पूरी WH फैमिली को दूसरे सेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन रेफर दैट. सो व्हाई डज मॉम नॉट स्कोल्ड हिम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्कोल्डेड आ रहा है, बट बहुत लोग यहाँ पे स्कोल्डेड लिखते हैं बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल प्रॉपरली. तो इसलिए यहाँ पे स्कोल्डेड नहीं यूज करना, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डू यू नॉट कॉल हिम, क्लियर, डू यू सब्जेक्ट, नॉट नेगेशन के लिए यूज हो रहा है, कॉल वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट. सो मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन जहां आपका शी भी आ गया, यू भी आ गया, ही भी आ गया, दे भी आ गया. क्यों यूज कर रही हूं, ताकि आपको पता लगे कि दे के साथ डज नहीं लग रहा है, क्वेश्चन में डू लग रहा है, यू के साथ डू लग रहा है, डज नहीं लग रहा है, आई के साथ भी डू लग रहा है, डज नहीं लग रहा है, एंड ही शी के साथ क्या लग रहा है, डज. क्लियर. Why does Rakesh not go to village? Again, same thing. Okay. So where to start with auxiliary or WH family for interrogative sentence? I have stated clearly with the examples on the previous slides कि भैया जब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हमने क्या किया, डू से स्टार्ट कर दिया, नहीं तो अगर क्या बीच में आ रहा है तो हमने क्या किया, WH फैमिली से ही क्वेश्चन स्टार्ट किया. व्हाट यानी कि क्या, ओके. देन विच कौन सा, ओके, बाय क्यों, तो ये सब क्या है आपकी WH फैमिली का पार्ट. सो जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब क्यों लिखा गया है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम है. हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर डू यूज करी है. ओके. जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं होता और क्या बीच में आता है, क्या या कोई, तब हम क्या यूज करते हैं, WH फैमिली